Hello students, now we are focusing on the last part of this chapter, which is by the name of quantity theory of money. But basically the theory of money has two components. One is the demand for money and the other is the supply of money. अब डिमांड कौन करता है बेटा? तो हम लोग कंज्यूमर्स, बिजनेस एक्सेट्रा. और मनी का सप्लाई कौन करता है? तो इट इज ऑब्वियसली द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट. So there has to be an equilibrium between the demand and supply for money. On that basis, we have two theories in our syllabus. One of the theories that we are studying is by the name of cash balance approach and the other is by the name of cash transaction approach. So the first theory that we are going to study is by the name of cash transaction approach. But quite clearly the word used is transaction. Transaction का मतलब क्या हो गया कि money is utilized but for the purpose of using it, spending it and as a medium of exchange. तो बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच बोलता है कि ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है कि मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. So when money is used as a medium of exchange, all the money that you have is for the purpose of spending it. तो इमेजिन करो बेटा कि हम एक इकोनॉमी में रह रहे हैं जहां पर द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स, I repeat, the average price of goods is say for example 10 rupees and the number of transactions that we will undergo is for example 1000. मतलब हमारे कंट्री में जो प्राइसेस चल रहे हैं वो 10 रुपीज है, जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हम सब मिलकर करने वाले हैं वो 1000 है. सो हाउ मच मनी आर वी गोइंग टू रिक्वायर? The money that we are going to require is 10,000 rupees. तो ये जो 10,000 rupees है, that is the demand for money. Now, when we talk about the demand for money, it is nothing else but price multiplied by the number of transactions. So in our case, 10 into 1000 was 10,000. Therefore, money demanded was or is 10,000. The next part is the supply of money. अगर देश में 10,000 रुपए का डिमांड है तो सप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना. क्या 10,000 का डिमांड है तो क्या 10,000 आरबीआई को छापना पड़ेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज मनी हैज अ कॉन्सेप्ट विच इज बाय द नेम ऑफ वेलोसिटी. V stands for velocity. और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? How many times the currency exchanged hands. मतलब अगर मैंने पैसा मेरे वाइफ को दिया, मेरे वाइफ ने पैसा किसी ग्रोसरी वाले को दिया, ग्रोसरी शॉप वाले ने वो पैसा किसी आगे सप्लायर को दिया, मतलब एक ही जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बेसिस पे मनी ने कितनी बार हाथ घुमाए, उसे कहते हैं वेलोसिटी. So let us assume that the velocity in our country is 5. मतलब अगर एक बार कोई नोट छपा तो वो 5 बार ट्रैवल करेगा. तो क्या आरबीआई को 10,000 रुपए छापने का जरूरत है? द आंसर इज नो. द सप्लाई ऑफ आरबीआई विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5. मतलब what should we multiply with 5 to get 10,000? तो कैन आई से आरबीआई 2,000 रुपया छापेगा, आरबीआई 2,000 रुपीज को सर्कुलेशन में लाएगा और वो 5 बार हाथ घुमाएगा. तो बेटा यहाँ पर कैन आई से ये भी 10,000, ये भी 10,000, मैचिंग. मतलब कैन आई से MV is the money supply, PT is the money demanded and the demand for money is equal to supply of money. Only then an economy will be at equilibrium. This theory was propounded by an economist by the name of Fisher. और फिशर ये बोल के गए कि MV
should be equal to PT, where M is the money stock, V is the velocity, P is the price and T is the number of transactions. अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर क्या आज के डेट में ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश में होता है? द आंसर इज नो. Can I say in today's world the transactions takes place with the help of the banking system as well. इसीलिए मॉडल फिशर ने एक और एग्जांपल और एक और फॉर्मूला दिया which says MV plus M dash V dash is equal to PT. MV मतलब जो कैश में ट्रांजैक्शन हुए, M dash V dash मतलब जो हमारे इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सिस्टम में है वो दोनों मिलाकर पीटी होना चाहिए. मतलब अगेन दिस इज योर मनी सप्लाई, दिस इज योर मनी डिमांड. डिमांड फॉर मनी शुड बी इक्वल टू द सप्लाई ऑफ मनी. तो इन द कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच कैन आई से द फंक्शन दैट वी फोकस्ड ऑन वाज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पैसा होता ही इसीलिए है so that you can spend, so that there are transactions. Money is considered as a medium of exchange by Fisher in cash transaction approach. I hope we are clear with that. तो जब हम ये फॉर्मूला देखते हैं तो ये फॉर्मूला के अंदर हमें क्या मिला? If I have to see this formula over here, MV is equal to PT. तो बेटा अगर प्राइस फाइंड करना है तो प्राइस इज इक्वल टू MV अपॉन T. और आप बहुत सारे मल्टीपल वेरिएंट्स यूज कर सकते हो. यू कैन से दैट V इज इक्वल टू PT अपॉन M. मतलब बेसिकली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, प्राइस फाइंड कर सकते हो. तो जब भी हम लोग क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी पढ़ते हैं तो उसका पहला थियोरी है विच इज बाय द नेम ऑफ कैश transaction approach. Similarly, there is another theory which is by the name of cash balance approach. अब क्या वर्ड आया बेटा? There is something called as cash balance. पहले वाले कॉन्सेप्ट में ट्रांजैक्शन था, ये वाले कॉन्सेप्ट में कैश बैलेंस है. ट्रांजैक्शन और बैलेंस दोनों में फर्क है. सो कैश बैलेंस का मतलब इट इज बेस्ड ऑन स्टोर वैल्यू. मतलब पैसा सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता नहीं है, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है. मनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्टोर वैल्यू. और ये जो कॉन्सेप्ट था वो दिया एल्फ्रेड मार्शल और AC पिगू ने. एल्फ्रेड मार्शल और AC पिगू बोलते हैं कि व्हाई शुड मनी बी यूज्ड ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इन टुडेज जनरेशन, इन टुडेज वर्ल्ड, मनी हैज अनदर यूज विच इज कॉल्ड एज स्टोर वैल्यू. मतलब पीपल विल वांट टू स्टोर मनी इन द प्रेजेंट फॉर सर्टन कॉन्सिक्वेंसेज इन द फ्यूचर. तो हम लोग फ्यूचर के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसे को बचाएंगे. बेटा ऐसा बोला जाता है कि मनी के 3 पर्पस होते हैं. एक होता है ट्रांजैक्शन पर्पस, जो हमने पहले अप्रोच में पढ़ा. दूसरा होता है प्रिकॉशनरी फंक्शन और तीसरा होता है स्पेक्यूलेटिव फंक्शन. इन आवर सिलेबस वी आर कवरिंग 2 एस्पेक्ट्स. One is by the name of transaction motive and the other is by the name of precaution motive. तो बेटा एल्फ्रेड मार्शल और AC पिगू ने स्टोर वैल्यू को इंपॉर्टेंस दिया, मतलब प्रिकॉशन मोटिव को इंपॉर्टेंस दिया. एंड अकॉर्डिंग टू देम द फॉर्मूला इज परचेजिंग पावर इज इक्वल टू K, ये छोटा K रहेगा, KR अपॉन M. अब बेटा परचेजिंग पावर इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज 3 वेरिएबल्स. कैसे? अगर मैं आपको पहले बताऊं कि ये जो साइन है वो परचेजिंग पावर है. K स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट. कांस्टेंट जो हम हमारे पास रखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स.
the money that we are demanding for the future, we want to keep this money with ourselves. That constant is K. R is your national income, real national income, and M is the money supplied. Purchasing power has a direct relationship with K and R. I repeat, purchasing power has a direct relationship with K and R. R मतलब नेशनल इनकम, और बेटा अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा तो परचेसिंग पावर बढ़ेगा. अगर प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम आप खुद के पास ज्यादा रखना चाहते हो, इफ यू वांट टू कीप मोर मनी विथ योरसेल्फ, के ज्यादा, तो आपका परचेसिंग पावर भी ज्यादा. तो बेटा के और आर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप आएगा, पर जो मनी सप्लाइड है उसके साथ द रिलेशनशिप विल बी इनवर्स. नाउ व्हाई विल बी द रिलेशनशिप इनवर्स? बिकॉज कैन आई से दैट अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा, क्या बोला, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और अगर प्राइसेस बढ़ने लगेंगे तो आपका परचेसिंग पावर तो कम हो जाएगा. सो दे हैव डिफाइंड दैट परचेसिंग पावर is equal to KR upon M. There is a direct relationship with K and R, and there is an inverse relationship with M. Now, there is a theory which says pi is equal to 1 upon P. But a pi का मतलब rather purchasing power. This sign is purchasing power. So purchasing power is equal to 1 upon P. मतलब purchasing power has an inverse relationship with price. अगर प्राइस डबल हो गया, क्या बोला, अगर प्राइस डबल हो गया तो आपका परचेसिंग पावर हाफ हो जाएगा. अगर प्राइस 10 का 20 हो गया तो आपका परचेसिंग पावर 2 का 1 हो जाएगा. So it is believed that your purchasing power is 1 upon P. तो एक काम करता हूं, परचेसिंग पावर का ये जो साइन है उसको मैं 1 by P से रिप्लेस कर देता हूं. So 1 by P is equal to K R upon M. Now over here M is equal to K into R into P. मतलब कहना है से रियल नेशनल इनकम गेट्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस. देयरफॉर योर मनी सप्लाई इज इक्वल टू, क्या आएगा बेटा, मनी सप्लाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट, देन R into P मतलब रियल नेशनल इनकम मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्राइस. सो यू विल गेट द नॉमिनल नेशनल इनकम, money national income, valuation of national income in terms of rupees. तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, y. Therefore we say that M is equal to KY. So with this we have understood the concept of cash balance approach. Cash balance approach was given by Alfred Marshall and AC Pigou. This is also known as the Cambridge इक्वेशन और द कैम्ब्रिज अप्रोच, जहां पर इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, स्टोर वैल्यू को. द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बैलेंस अप्रोच सेज दैट परचेसिंग पावर इज इक्वल टू के आर अपॉन एम. के एंड आर हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ परचेसिंग पावर. एम हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विथ परचेसिंग पावर. So over here we have found out what the equation exactly tries to tell us. Also, can I say, I told you that there are 3 motives of money, that is transactionary motive, precautionary motive and speculative motive. The concepts that we have covered in our syllabus are transactionary motive and precautionary motive. So this was all with respect to the quantity theory of money. One was given by Fisher, the other was given by Alfred Marshall and AC Pigou. चलो, so अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो we should now focus on the MCQs.
In all, there are 69 MCQs in your syllabus. And now that we have completed all the concepts, we can focus on the MCQs. Again, I repeat, students, please do not directly start with the MCQs. एक बार पूरा पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, सब कॉन्सेप्ट्स को समझो. कोई कॉन्सेप्ट अगर डाउटफुल लग रहा है तो वीडियो देखो, फिर ही एमसीक्यू सॉल्व करना. डू नॉट स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज बिफोर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. सो कम टू पेज नंबर 108. There are approximately 69 MCQs as I had told you earlier. I again request none of you will mark the answers in your textbook. I want all the answers in a notebook. Separate section बनाओ जहां पर आप आंसर्स लिख रहे हो A, B, C, D, etc. Please do not mark the answers in the textbook. चलो पहला सवाल. Which of the following is considered as the function of money? Function of money क्या है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर वैल्यू है. तो बेटा आंसर क्या आएगा? डी फॉर डक, ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर फॉर फर्स्ट एमसीक्यू इज डी. द सेकेंड एमसीक्यू, लीगल टेंडर मनी रिफर्स टू विच? बेटा लीगल टेंडर क्या होता है? जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी होता है. सो लीगल टेंडर मनी रिफर्स टू which is backed up by the law and refusal to accept it is a punishable offense. मतलब अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा. उसी का मतलब होता है लीगल टेंडर. तो अगर आप किसी को 100 रुपीज का नोट दो तो इट इज अ लीगल टेंडर मनी, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. अगर नहीं किया तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. The third MCQ, Fisher's equation. अभी हमने पढ़ा MV is equal to PT and MV plus M dash V dash is equal to PT. This equation was given by Fisher. It explains value of money at a given point of time, value of money for a period of time, value of money as a ratio of demand for money, के none of the above. तो बेटा this equation Fisher's was called as cash ट्रांजैक्शन अप्रोच. ट्रांजैक्शन मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि बेटा अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता तो स्टोर वैल्यू होता, बट वो लोग अभी का बात कर रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का बात कर रहे हैं, तो इट हैज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्वालिटी एंड देयरफॉर इट इज एट द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Your answer cannot be B because B option talks about store value, but Fisher's equation talks about medium of exchange. Therefore, your answer for third MCQ is A. The fourth one, liquidity refers to what? बेटा liquidity का मतलब क्या होता है? Something which can be easily converted into an asset. So A option is the market value of the asset. वो liquidity नहीं है, जब तक बिकेगा नहीं तब तक liquid नहीं. Next, moneyness of an asset, गलत. Convertibility of asset into money or convertibility of money into an asset. So can I say your answer for the fourth MCQ is C? कि आप कितना जल्दी एक asset को money में convert कर सकते हो, वो उसका liquidity है. Money is the most liquid asset, and mobile phones, gold, silver, diamonds are near money. I hope I am clear with that. Your answer for fourth MCQ is C. Moving on to the fifth MCQ. If the quantity of money increases, money supply अगर बढ़ गया तो value of money क्या होगा? बेटा अगर मनी सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? कम. सो योर आंसर फॉर फिफ्थ एमसीक्यू इज ए. इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी
सप्लाई एंड परचेजिंग पावर। बेटा वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ही परचेजिंग पावर होता है। आगे द नेक्स्ट वन, हु इज द ऑफिशियल लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो हमारी आखिरी उम्मीद कौन है? डूबते को तिनके का सहारा कौन है? इट इज द आरबीआई। So your answer for 6th MCQ is C, RBI. The next MCQ, dash refers to that portion of total deposits of a commercial bank which it has to keep with the RBI in the form of cash reserves. So बेटा ये जो रिजर्व्स है वो आरबीआई के पास है, इन द फॉर्म ऑफ कैश है, तो ऑब्वियसली ये सीआरआर है, क्योंकि एसएलआर तो हम खुद के साथ मेंटेन करते हैं इन लिक्विड असेट्स। सो योर आंसर फॉर द 7th MCQ is A. CRR refers to that portion of total deposits of a commercial bank which it has to keep with RBI in the form of cash reserves. I hope we are clear. Please write down the answer as A. The next MCQ, in order to control credit in the country, in order to control credit in the country, the RBI में क्या बोला है? बाय सिक्योरिटीज। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज बाय करेगा, अगर आरबीआई खरीदेगा तो आपके पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट, सेल सिक्योरिटीज, अगर सेल करेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कम, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस बैंक रेट, अगर बैंक रेट कम कर दिया तो भी मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन में ये लोगों ने इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है ये तो बताया ही नहीं, ये लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया टू कंट्रोल क्रेडिट। सो आई डिडंट नो वेदर आई हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और आई हैड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। तो मैंने क्या किया, सारे ऑप्शंस का जवाब लिख दिया। कैन आई से बाय सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, ये भी डिफ्लेशन, ये भी डिफ्लेशन के टाइम पे करेगा। मतलब कहना इसे एक ही ऐसा ऑप्शन है जो इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है। सो अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। दिस विल बी डन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। So generally when you talk about credit control, we 99% of the times talk about inflation. But to get myself the clarity, I just saw that 3 options were showing the case of deflation. So obviously the odd man out, the answer that we want is B. If RBI sells security, money supply will be controlled. Hence credit will be controlled. And therefore your answer is B. चलो 9th MCQ, dash controls affect indiscriminately. I repeat, dash controls affect indiscriminately to all sectors of the economy. मतलब कोई भी सेक्टर के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो बेटा कौन से मेजर्स थे, क्वालिटेटिव मेजर्स के क्वांटिटेटिव? द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्योंकि मार्जिन मनी में डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन फार्मर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। मार्जिन मनी के साथ साथ सिलेक्टिव क्रेडिट मतलब क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव का मतलब डिस्क्रिमिनेटरी। क्वेश्चन में पूछा है इनडिस्क्रिमिनेटरी, देयरफॉर योर आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं 10th MCQ, हु इज द कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स? वन एंड ओनली RBI. So your answer for 10th MCQ is D for duck. चलो नेक्स्ट 11th, what is बैंक रेट? हमने बैंक रेट पढ़ा था। बैंक रेट इज द रीडिस्काउंटिंग रेट। Who rediscounts? RBI. What RBI rediscounts? Bills of exchange. किसका bills of exchange? कमर्शियल बैंक का। So
So your answer for 11th MCQ is D. The rate at which the RBI discounts the bills of commercial banks. रीडिस्काउंट्स भी चलेगा, पर यहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक का बिल्स को डिस्काउंट किया है. सो अगर रीडिस्काउंटिंग आया तो भी बैंक रेट, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक का बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट किया तो भी बैंक रेट. सो योर आंसर फॉर 11th MCQ is ऑप्शन डी. बेटा 12th MCQ जरा ध्यान से रीड करो. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी इन्फ्लेशनरी. तो बेटा क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक ऐसा फैक्टर बताओ जो एंटी इन्फ्लेशनरी है. नहीं, नॉट वर्ड यूज किया ना, अंडरलाइन करो. नॉट एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर मतलब आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा. चलो देखो, राइज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट बढ़ा दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगा. नेक्स्ट देखो क्या दिया है, रेजिंग द CRR तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा. मतलब कहना है इसे रेजिंग बैंक रेट, raising CRR is an anti-inflationary measure. But are we supposed to find anti-inflationary? We are supposed to find not an anti-inflationary. तो परचेज सिक्योरिटीज, अगर आरबीआई ने परचेज किया तो आपके पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो आपने वो काम किया that is of adding fuel to fire. So your answer will be option C. D option भी देख लो, rationing of credit. अगर आप rationing of credit करोगे तो can I say it will give money to the most desired sectors. So your option C, purchase of securities by the RBI is not an anti-inflationary measure. चलो आगे 13th one, find the odd one out. SBI, RBI, Bank of Baroda and Bank of India. Don't you think RBI is the obvious answer? क्योंकि बाकी के तीनों are commercial banks, जबकि Reserve Bank of India is the Central Bank of India. So your answer for 13th MCQ is B. The 14th one, the higher the marketing cost. बेटा अगर आपका कॉस्ट ज्यादा होगा तो आपका लिक्विडिटी, आपके जेब में पैसा कम होगा. सो द हायर द मार्केटिंग कॉस्ट, लेसर विल बी द लिक्विडिटी. सो योर आंसर फॉर 14th MCQ इज बी फॉर बॉम्बे. 15th वन, फिशर गेव डैश अप्रोच टू क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी. बैलेंस वाला अप्रोच दिया था, स्टोर ऑफ वैल्यू वाला अप्रोच दिया था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब ट्रांजैक्शनल. सो कैन आई से फिशर गेव ट्रांजैक्शनल अप्रोच, देयरफॉर योर आंसर इज ए. द नेक्स्ट वन 16, P प्राइस इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश अपॉन T. बेटा MVPT ये किसने दिया? वन एंड ओनली बाय द नेम ऑफ फिशर, which was a transactional approach again. So your answer for 16th MCQ is A. The next one, 17th MCQ. Reserve Bank of India was nationalized in which year? बेटा क्वेश्चन में पूछा है established के nationalized. तो क्वेश्चन पूछता है nationalized, that happened in January 1949. So your answer for 17th MCQ is A. The 18th one, Central Bank of India has dash offices across the country. It is 22. So your answer for 18th MCQ is C. The next one, dash is the rate. मतलब एक ऐसा रेट ढूंढो which central bank borrows from commercial bank. अब बेटा ध्यान देना, किसने किससे बोरो किया? सेंट्रल बैंक ने बोरो किया.
तो ये रेपो रेट है, गलत। दिस इज द रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक बोरोज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक लेंड्स टू द सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, that rate of interest is called as reverse repo rate. So your answer for 19th MCQ is B. The 20th one, margin requirement is dash. बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, जनरल है कि सिलेक्टिव है, डिस्क्रिमिनेटरी है कि इनडिस्क्रिमिनेटरी है? तो देखो ऑप्शंस क्या है, क्वालिटेटिव, हाँ सर क्वालिटेटिव है, सिलेक्टिव सर दोनों है, मतलब आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन, क्रेडिट क्रिएशन। बेटा क्रेडिट कंट्रोल नहीं, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? तो क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय अ कमर्शियल बैंक, सो योर आंसर इज बी। द नेक्स्ट वन, as per transactional approach, if the quantity of money double, then the value of money becomes dash. बेटा अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा। तो अगर वैल्यू ऑफ मनी डबल हो गया तो उसका इनवर्स 1/2 हाफ हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी 22nd MCQ के लिए बी फॉर बॉम्बे। The next MCQ, secondary functions of money are also known as, बेटा secondary functions को हम बोलते हैं derived functions. So the answer for 23rd MCQ is C. Secondary functions of money are also known as derived functions. Next one, monopoly of notes issue rests with, नोट इशू का मोनोपोली किसके पास है? तो one and only RBI. So your answer is the central bank of a particular country. A will be the right answer. The next one, in order to reduce money supply, मतलब हमें मनी सप्लाई को कम करना है, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? विल आरबीआई बाय और विल आरबीआई सेल? बेटा अगर आरबीआई बाय करेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, पर अपने को मनी सप्लाई कम करना है, मतलब ये तो नहीं हो सकता है। तो व्हाट विल आरबीआई डू? आरबीआई विल सेल। व्हेन आरबीआई सेल्स, इट विल सेल टू द पब्लिक, पब्लिक विल गिव मनी टू द आरबीआई, तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगा। यहां पर भी मनी सप्लाई कम, यहां पर भी मनी सप्लाई कम, तो ये आपका आंसर क्या आएगा? 25th MCQ के लिए आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। द नेक्स्ट वन, टू डिफाइन मनी, डेफिनेशंस ऑफ मनी पढ़े थे, 4 डेफिनेशंस पढ़े थे, लिक्विडिटी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, then we had studied the monetarist approach and the central bank approach. So total we have 4 definitions. To define money, 2 approaches have been adopted by economists. What are the 2 approaches? One is the functional approach on the basis of its function, and other is its liquidity approach. So beta answer for 26th MCQ is A. The next one, due to which factors transaction of lending and borrowing money is regarded as best medium? It is because of stability in value, general acceptability, durability, all of the above. बेटा इन सभी कारणों के वजह से lending and borrowing possible है, therefore your answer will be D for duck. The next one, contingent functions of money were given by, stated by Professor Kinley. हमने अंडरलाइन भी किया था, एक प्रोफेसर था जिसने कंटिंजेंट या टर्शियरी फंक्शंस ऑफ मनी दिया था, बेसिस ऑफ क्रेडिट, प्रॉफिट्स, लिक्विडिटी कन्वर्टेड इनटू असेट्स, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. सो योर आंसर विल बी प्रोफेसर किनली हु गेव द कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी. द नेक्स्ट MCQ, an item cannot have liquidity unless it has marketability.
आई बिलीव दैट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बेटा ये पेन में लिक्विडिटी है क्या? है। क्यों? क्योंकि अगर इसको बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, मतलब ये पेन में मार्केटेबिलिटी है। आई कैन मार्केट दिस पेन, आई कैन सेल दिस पेन। क्या ये बोर्ड को बेच पाऊंगा? हाँ। क्या ये मार्कर को बेच पाऊंगा? हाँ। क्या ये पेंसिल को बेच पाऊंगा? हाँ। पेन को बेच पाऊंगा? हाँ। मतलब ये सारी चीजों में मार्केटेबिलिटी है, और अगर मार्केटेबिलिटी है तो लिक्विडिटी है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रू। द नेक्स्ट वन, liquidity of an asset. What is liquidity? An asset converted into money. So liquidity of an asset is deeply influenced by following factors. तो बेटा can I say it is affected by period of maturity? अगर आपके पास FD है तो उसमें liquidity तो है, but can I say कितने साल के बाद वो FD मैच्योर होगा, उस पे आपका liquidity डिपेंड करता है। And the liquidity also depends on the price fluctuations. So your answer for 30th MCQ is C, both A and B. The next one, liquidity approach emphasized on which function of money? तो the answer has to be store value, क्योंकि liquidity का मतलब क्या हो गया कि it is dependent on maturity as well। और अगर मैच्योरिटी 2 साल के बाद होगी तो 2 साल का टाइम पीरियड लगेगा। टाइम पीरियड मतलब स्टोर वैल्यू। सो द आंसर फॉर 31st MCQ इज बी फॉर बॉम्बे। द नेक्स्ट MCQ, लोन डिपॉजिट्स, मतलब बैंक जब लोन देता है तो आपके अकाउंट में पैसा जमा करवा रहा है। कौन किसके अकाउंट में पैसा जमा करवा रहा है? बैंक कस्टमर के अकाउंट में लोन के फॉर्म में पैसा जमा करवा रहा है, तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट। सो लोन डिपॉजिट में बी टर्म्ड एज सेकेंडरी डिपॉजिट एंड कैश डिपॉजिट में बी टर्म्ड एज प्राइमरी डिपॉजिट, क्योंकि जब मेरे पास आइडल कैश पड़ा रहेगा तो मैं बैंक में जमा करवा देगा। अगर मैंने बैंक में जमा करवा दिया तो वो प्राइमरी डिपॉजिट। सो योर आंसर फॉर 32nd MCQ इज बी फॉर बॉम्बे। द नेक्स्ट वन, according to which approach money does not perform store of value function? तो बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच में द फंक्शन ऑफ मनी वॉज मीडियम, तो योर आंसर विल बी बॉम्बे। इन ट्रेडिशनल अप्रोच मनी डज नॉट परफॉर्म स्टोर वैल्यू फंक्शन। मनी परफॉर्म्स द स्टोर वैल्यू का फंक्शन इन द लिक्विडिटी अप्रोच। तो बेटा 33rd MCQ के लिए आंसर विल बी बॉम्बे। द नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग इक्वेशन वॉज गिवन बाय फिशर। फिशर ने कौन सा इक्वेशन दिया था बेटा? MVPT वाला। तो आपका आंसर आएगा बी, दैट इज P इज इक्वल टू MV प्लस M' अपॉन T। द नेक्स्ट वन, मॉरल सुएजन क्या है? क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? सो द आंसर इज नेचुरली क्वालिटेटिव मेजर। योर आंसर फॉर 35th MCQ इज बॉम्बे। द नेक्स्ट वन, 36, सपोज अ बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एट 6%, मतलब बैंक ने पैसा लिया 6% पे, बैंक ने लोन दिया 9% पे, तो बताओ बेटा प्रॉफिट कितना हुआ? 9% माइनस 6% विच इज 3%। सो योर आंसर विल बी बॉम्बे, बी।